Reserve Bank of India. Which Bank of India? Reserve Bank of India. Full form is Reserve Bank of India, and it is Central Bank of India. Okay, and it guides and give instruction to all the commercial bank. Okay, this much we know, but we have to know more than that. Okay, let's know that how it was been started. ठीक है, कैसे शुरू हुआ पहले हम लोग ये देखेंगे. Yes, ma'am. And gradually what was the development done in that RBI. Okay, so first you need to write it was a private owned bank. Initially RBI was a private owned bank. Okay, just write in a bullet point. You don't need to write in descriptive form. Just key point, it was privately owned bank initially, but after Hilton Young Commission or the Royal Commission, on their recommendation, it was been converted into public bank. Okay, on whose recommendation? Hilton Young Commission or the Royal Commission. Just bullet point, Hilton Young Commission or the Royal Commission on Indian currency and finance, when it was been recommended in 1926. Yes, ma'am. Hilton Young Commission के recommendation पे 1926 में again its act was been passed. When act was been passed on 1934. RBI Act was passed in 1934. All right. 1934. And it was established on 1st April 1935. Am I clear, Hamid? Yes, ma'am. Okay. The 1st April 1935 was its establishment date, and our act year is 1935. Okay. Before, its headquarter was in Kolkata. RBI's headquarter was in Kolkata. Okay, Yes, then in 1937, its headquarter was again shifted to Bombay. That time called Bombay, now it is Mumbai. So you need to write Bombay. And Kolkata also you will not write, it will be Calcutta. Kolkata. उस वक्त Yes, ma'am. कलकत्ता था, तो कलकत्ता में से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा रेगुलेशन एक कॉर्नर पे हो जाता है ना कलकत्ता, तो सारा रेगुलेट नहीं हो पा रहा था. That's why it came to Kolkata. Mumbai. Yes, ma'am. Mumbai. Headquarter to Mumbai. So initial its paid up capital was 5 crore. Initially its paid up capital was 5 crore. Okay, and then it was being nationalized in 1949. When was nationalization being done? In 1949. So at that time it converted from private owned to government owned. Okay. Yes, ma'am. 1949 it converted from private owned to government owned. So sometimes it has been asked that who was the first governor of RBI or who was the first Indian. So first you write first governor was Sir Osborne, Osborne, Sir Osborne. Okay, he was from 1935 to 37. 1935 to 37. He was the first governor of RBI. Now let's talk about first Indian governor, C.V. Deshmukh. First Indian governor was C.V. Deshmukh from 1943 to 1949. Okay. Beside that, some objective question has been asked that who do this note printing? Who does this note printing? The sole authority given to RBI of note printing. None other than RBI do this note printing. Okay. Now, Authority given to? the sole authority is given to RBI for note printing. ठीक है, नोट प्रिंट सिर्फ RBI ही कर सकता है अपने कंट्री में. ठीक है. Beside that, if we talk about coin minting, then who does that? Coin minting, note printing we say, and coin minting we say. Who do this coin minting? Any idea?
This authority is given to Government of India. This RBI don't do. Coin minting RBI don't do. Only Government of India or Finance Ministry do this coin minting. Okay, this much is clear. Yes, ma'am. Now we need to know about the structure of RBI. Okay, structure of RBI. So RBI is governed by Central Board of Director. Central Board of Director. So in RBI we have official directors and non-official director. Let's first talk about official directors. In official director, 1 is governor and 4 is deputy governor. In official director, 1 will be governor and 4 deputy governor. ऑफिशियल डायरेक्टर में एक गवर्नर होंगे और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में 10 डायरेक्टर होंगे. 10 डायरेक्टर्स विल बी देयर प्लस 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्लस 4 अदर ऑफिसर्स और डायरेक्टर. Ma'am, plus 4 official director. Other officer public directors. All right, this is the structure of RBI. Now, if we talk about hierarchy, who is placed at the head of this RBI, so a governor will be the head. Okay, you need to draw the hierarchy. स्वाति आपको hierarchy बनाना है. पहले governor लिखिए, उसके बाद arrow दीजिए नीचे के side. Then it will be deputy governor. Yes, First ma'am. will be governor, then deputy governor, then executive directors. Then principal chief general manager. Principal chief general manager. Then chief general manager. Okay. Then Yes, deputy ma'am. general manager. What, ma'am? Deputy general manager. Deputy. DEPUTY. Deputy general manager. Yes, And ma'am. after that, assistant general manager. And then manager. And then assistant manager. Okay. So this was all about RBI. Now let's understand its function, which is already given in your book. I will just keep on explaining. Yes, ma'am. What functions is there? Like in RBI, monetary policy is done by RBI only. Fiscal policy is done by RBI only. Okay. That's why we need to understand its function, what RBI does and what are its function. So first we will see, it is talking about issue of currency. So we have Yes, already ma'am. discussed that issue, not only issue, forfeit or again reissue. All these responsibility is of RBI only. मतलब currency को तो issue कर ही सकते हैं, RBI करती ही है. इसके अलावा अगर हमको कोई currency को वापस लेना है, ठीक है, वो भी forfeit मतलब क्या, वापस ले लेना. ठीक है, forfeit करने का भी जिम्मा आपका RBI का ही होता है, वो हक है उसके पास. Other than that, it can also reissue. Okay, it can also reissue the currency. Fine. This is the first function of RBI. Other than that, it is banker to government. Other than that, I am talking from your module page number 201. Okay, the first function is issue of currency is clear. Now, Yes, second function is banker to government. Banker to government means what? Any government don't take payment, don't receive payment directly. It is always done through RBI. So on behalf of government, always RBI do these all things. Okay. Yes. Then next one is bankers bank. Again, obviously we have already discussed that commercial bank don't take any decision by themselves. Always it is instructed by RBI. RBI instruct करती है commercial bank को क्या करना है,
क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है. एंड बैंकर्स टू बैंक मींस व्हाट, इफ कॉमर्शियल बैंक के पास कोई शॉर्टफॉल होगा, अगर मान लीजिए शॉर्टेज होगा कैश का, तो इट विल गो टू आरबीआई. ठीक है. इफ कॉमर्शियल बैंक विल हैव सरप्लस, then also it will go to RBI. Keep Yes, it ma'am. reserved. Okay. Yes, ma'am. How we will know in that monetary policy. Further, we will see CRR and SLR. Okay, bank rate, reverse repo rate, where it will become much more clear to you. Done. And after that, Yes, ma'am. controller of credit. Controller of credit मतलब मार्केट में वो पैसे को कंट्रोल करने का उसका जिम्मा होता है. How they control credit from the market through these tools, through CRR, through SLR, through open market operation. Okay. Next one is exchange management and control. We have already discussed in FEMA that all these controls are done from whom? Foreign currency is Yes, ma'am. controlled by whom? Ma'am, foreign currency FEMA, ma'am. FEMA का एडमिनिस्टर करने का पावर किसको दिया गया है? Ma'am, Administrative body of CBI. FEMA. Administrative body of FEMA. Ma'am, CBI. RBI. Sorry, ma'am, RBI. Sorry, ma'am. FEMA का administrative body is RBI. RBI, yes, ma'am. Okay. So next one is collection and publication of data. तो RBI को ये authority दिया गया है to एक monthly bulletin RBI publish. Okay. In that price, FDI and many more data are being published from RBI. Okay. So collection and publication of data, this function is also of RBI. Then supervisory function. Supervisory function मतलब क्या? कोई एक supervisor होते हैं आपको देखने के लिए. सेम वे इन कॉमर्शियल बैंक को देखने के लिए आरबीआई एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करती है. ठीक है. बैंकर्स को सुपरवाइज करना, उसको गाइड करना, दीज आर रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ आरबीआई. ठीक है. अदर देन दैट, डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शन इज आल्सो ऑफ आरबीआई थ्रू व्हाट? आईडीबीआई, एसएफसी. ठीक है. सिडबी, ये सबसे, सिडबी से क्या हुआ? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम फोकस कर रहे हैं. आईडीबीआई, फिर एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर यूटीआई, इन सब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? प्रमोशनल फंक्शन का रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है. देन अगेन मनी मार्केट और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब में फंड फ्लो लाइक प्रायोरिटी सेक्टर वो सेट करती है आरबीआई कि एग्रीकल्चर में, एक्सपोर्ट में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, इन दीज सेक्टर यू हैव टू गिव क्रेडिट इन लिबरलाइज्ड फॉर्म इन लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. प्रायोरिटी सेक्टर में 3 सेक्टर आते हैं जनरली. एक्सपोर्ट सेक्टर हो गया, स्मॉल स्केल सेक्टर हो गया, और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया. तो ये सब सेक्टर पे क्या होता है? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन लोगों को क्रेडिट दिया जाता है ताकि इन सारे एरियाज का डेवलपमेंट हो, सो दैट डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल ऑफ दीज सेक्टर्स. क्लियर? Yes, ma'am. तो ये सारा था आपका फंक्शंस. फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस. ठीक है. इसमें भी एडवाइस का काम करती है. आरबीआई हैज आइदर क्रिएटेड हिमसेल्फ और हिज एडवाइस एंड हेल्प इन क्रिएशन ऑफ मेनी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन में जैसे आपका आईडीबीआई हो गया. ठीक है. ये सब डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. बाकी आपका आईसीआईसी है. ठीक है. कोई भी नया बैंक अगर फॉर्म होगा तो दे विल नीड लाइसेंस. अगर कोई नए बैंक को इवन प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना खोलना हो, दे विल नीड लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई. ऑलराइट. So these are the functions of RBI. Now let's switch to monetary policy of RBI. And from this section, question will be there. Okay. Yes. So if we talk about monetary policy, what is monetary policy? Any idea? मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल है जिससे आरबीआई कंट्रोल करती है इसका इंटरेस्ट, लोन, कैश, demand, inflation, everything is controlled from this policy. And there are two types of tools which RBI use. One is quantitative, second one is qualitative. तो ये जो भी आप देख रहे हैं CRR, SLR, OMO, बैंक रेट, ये सारा क्या है? क्वांटिटेटिव है. ठीक है. दिख रहा है ना पेपर पे? OMO है, बैंक रेट है, फिर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉमर्शियल बैंक,
राइट, Yes, ma'am. CRR, SLR। अब समझते हैं हम लोग ये दोनों, हालांकि आपको जो यहाँ दिया गया है वो दोनों मिला के दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मिला के दिया हुआ है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो OMO जो है आपका वो क्वांटिटेटिव में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज क्वांटिटेटिव मेजर, विच वन इज क्वालिटेटिव मेजर। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजर में बस यही सब आएगा, OMO आएगा, बैंक रेट आएगा, CRR आएगा, SLR will come. Okay, other than that LAF will come. Okay, these are quantitative measure, rest all are qualitative measure. So let's first Yes, ma'am. understand quantitative measures में कौन कौन। सबसे पहले जैसे OMO है, तो OMO क्या हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके थ्रू क्या करती है RBI डज कि अगर मान लीजिए मार्केट में फ्लो ज्यादा है, कैश का फ्लो ज्यादा है, तो उसको मार्केट से हम लोगों को लेना है। ठीक है, तो लेगी कैसे, गवर्नमेंट RBI को बोलेगी सिक्योरिटी इशू करने के लिए, सिक्योरिटी वो मतलब बेचना शुरू कर देगी। RBI कॉमर्शियल बैंक के थ्रू सिक्योरिटी बेचना शुरू कर देगी। ठीक है, तो बेचेगी तो क्या होगा, सिक्योरिटी आपके हाथ में होगा, कैश पहुंच जाएगा बैंक के पास। Yes, ma'am. नो, अब बैंक के पास कैश पहुंच गया तो आपके पास तो पेपर है ना, लिक्विड एसेट तो है नहीं, लिक्विडिटी तो है नहीं No, ma'am. ना, कैश है, पैसा है नहीं, नतीजा आप डिमांड कम करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे पास कैश होता है तब ना डिमांड करते हैं ना। अगर मान लीजिए FD कर दिए हैं या फिर इफ यू हैव टेकन एनी इंश्योरेंस, तो ओनली बॉन्ड पेपर इज देयर विद यू, yes or no, you don't have cash, Yes, ma'am. only bond paper is there, so you will not be able to expend those means liquidity what you don't have, you will not be able to demand anything, yes or no। Yes. तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू RBI क्या करती है, कैश मार्केट से कंट्रोल करती है। ठीक है, और यही अगर मान लीजिए कैश अगर कम हो गया मार्केट में, तो क्या करेगी, सिक्योरिटी क्या करना शुरू करेगी, लेना शुरू करेगी अपने Yes. लिए, और वो कैश दे देगी, जितने का आपका सिक्योरिटी है वो कैश आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट, जब कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन लेती है RBI से, ठीक है, दैट इज बैंक Yes, ma'am. जब RBI दे रही है लोन कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल बैंक जब लॉन्ग टर्म लोन ले रही है RBI से, दैट इज जिस रेट पे आपको कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट चुकाना होगा, दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसके अलावा क्या चीज हम लोग को जानना है, कोई कोलैटरल यहाँ पे मेरे को रखना नहीं पड़ता है। बैंक रेट में कॉमर्शियल बैंक को कोई कोलैटरल नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, ये है इसका पॉइंट बैंक रेट का। अब आ जाइए CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या हुआ, जब हम लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं तो वी कीप डिपॉजिट्स Yes, ma'am. either in the form of saving account or current account or FD. In these form we keep deposit to bank. Yes, ma'am. And this is termed as NDTL. इसका टर्म होता है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, तो वो नेट डिमांड एंड, लिख पाए नहीं स्वाति? Yes, no, ma'am. NDTL का फुल फॉर्म No, ma'am. नहीं दिखे। मैंने कहा जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में, NDTL। Yes, ठीक है, चाहे इन द फॉर्म हम लोग क्या क्या डिपॉजिट करते हैं, या तो सेविंग डिपॉजिट होगा, या तो करंट डिपॉजिट ma'am. होगा, या तो FD होगा। तो हम लोग हमारे आपकी तरह सारे कस्टमर जा रहे हैं ना बैंक के पास, अपना डिपॉजिट कर रहे हैं ना। Yes, ma'am. फिर चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या हुआ, जब चाहा तब निकाल लिया, ऑन डिमांड निकाल रहे हैं। तो वैसा डिपॉजिट कौन कौन सा हुआ? मैम एक फिक्स डिपॉजिट पे तो करते हैं, जो जब चाहे तो निकाल लेते हैं। वो डिमांड कहाँ हुआ? फिक्स डिपॉजिट तो एक टाइम पीरियड के लिए आप बैंक में रख रहे हैं ना, दैट इज Yes, टाइम ma'am. डिपॉजिट। ठीक है, और अगर पहले आप निकाल रहे हैं तो आप उसके बदले सर्टेन खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। पूरा का पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं आपको, कार्ड No, तो ma'am. मिलेगा। अगर 5 साल के लिए किए हैं, 5 साल से पहले अगर निकाल लेते हैं तो कुछ तो कट जाएगा आपका। लेकिन Yes. सेविंग डिपॉजिट में आपका जब मन चाहा आप निकाल सकते हैं। करंट डिपॉजिट अगर है आपका तो जब मन चाहा निकाल देंगे। करंट Yes. डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, ये सब क्या हो गया आपका? डिमांड डिपॉजिट। Demand. Yes, ठीक है, ma'am. और जो आपका FD वगैरह है वो आपका टाइम डिपॉजिट कहलाता है।
ठीक है, क्योंकि वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप बैंक में रखते हैं। तो वही सीआरआर क्या हुआ, जो एनडीटीएल का दोनों मिलाकर के एनडीटीएल हो गया, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी क्यों, चूंकि आप बैंक में रख रहे हैं तो बैंक के लिए तो ये लाइबिलिटी है ना, उसको संभाल के रखना है। Yes, ma'am. They have to return to you again, right? So Yes, it is liability for them. तो क्या होता है, एनडीटीएल का कुछ फ्रैक्शन कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास। रिपीट कर रही हूँ, एनडीटीएल का कुछ फ्रैक्शन, कुछ पोर्शन कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी। Yes. बात आई समझ में? एज अ Yes, ma'am. सिक्योरिटी अगर आप रख रहे हैं तो सिक्योरिटी पे क्या कभी हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है आज तक? तो सीआरआर No. में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। Yes, ma'am. ठीक है, जस्ट एज अ सिक्योरिटी आपको आरबीआई के पास रखना होता है। ये बता बेसिकली देखा जाता है कि आपका पैसा सिक्योर है, सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास है, बट हाँ आरबीआई उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एसएलआर। अभी मैं मतलब समझा रही हूँ, उसके बाद कैसे ये ऑपरेट करती है, कैसे आपका इन्फ्लेशन कम हो जाता है, ये सब ऑपरेट करने से वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओएमओ तो ऑलरेडी आप समझ गए, बाकी पहले मतलब लिखते चले जाइए, बुलेट पॉइंट में लिखते चले जाइएगा, और बाद में डिटेल डिस्क्रिप्शन तो बुक में दिया हुआ है ही, उसको आप रीड आउट कर लेंगे। और ये पोर्शन एग्जाम शुरू होने से पहले भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर फ्रॉम बोथ पोर्शन क्वेश्चंस will be there in your exam. Okay, so what I was discussing about SLR, statutory liquid ratio. अब ये statutory liquid ratio क्या हुआ, एक तो अभी CRR हम लोग डिस्कशन किया कि जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट हम आरबीआई के पास रख रहे हैं एज अ सिक्योरिटी, लेकिन Yes. SLR क्या हुआ, ये कुछ पोर्शन हम अपने पास रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है। अपने पास रखना मतलब कॉमर्शियल बैंक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। Yes. कॉमर्शियल बैंक जो अपने पास रखती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या Gold. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये 3 फॉर्म में एसएलआर रहता है, ठीक है। तो ये कंपल्सन है, सारे कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना ही रखना होता है, ठीक है। Yes, ma'am. तो जो भी परसेंट रहे, क्योंकि इंटरेस्ट जो इसका परसेंट है वो चेंज होते रहता है, इट इज फ्लक्चुएटिंग, समटाइम्स इट इज, नाउ करेंटली इट इज 18%, ठीक है। अभी ये 18% है, लेकिन साल में 1-2 बार से ज्यादा ही कभी कदाल तो चेंज हो जाता है, Yes. ठीक है। तो आपको अभी ये याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। तो अभी मैं ये समझ गया, अब जैसे 18% बोल दिया गया एसएलआर रखने के लिए, तो एनडीटीएल का 18% जितना होगा वो रखना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को अपने पास। Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है या फिर मैं लिखवा दूं? No, ma'am, clear है। Clear होगा? फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रेपो रेट भी आपको जानना है, इसमें जो दिया हुआ नहीं है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट क्या हुआ, बैंक रेट हम देखिए, लॉन्ग टर्म लोन जब लेती है बैंक, कॉमर्शियल बैंक, तो दैट इज बैंक रेट। लेकिन Yes, शॉर्ट ma'am. टर्म अगर लेती है, अगर कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन ले रही है आरबीआई से, जब शॉर्टेज हो गया उसके पास कैश का, तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रही है, जनरली अगर बोलिए तो 2 to 14 डेज के लिए उसको लोन चाहिए होता है अगर, तो वो रेपो रेट कहलाए, ठीक है। अब Yes. बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रेपो रेट हुआ शॉर्ट टर्म, जनरली 2 to 14 डेज के लिए अगर Yes, कॉमर्शियल ma'am. बैंक लोन ले रही है आरबीआई से, तो नाउ रिवर्स रेपो रेट, यहाँ शॉर्टेज हुआ था तो कॉमर्शियल बैंक ले रही थी, राइट। लेकिन Yes. रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा होता है, ठीक है। सरप्लस पैसा ऑब्वियसली जो हम आइडल अपने पास रखे रहेंगे, तो वो क्या करती है, आरबीआई अपने पास सरप्लस, अपने पास मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास अगर सरप्लस रहेगा तो वो ऑब्वियसली ज्यादा लोन देना शुरू करेगी, नतीजा ज्यादा पैसा आ जाएगा मार्केट में। तो आरबीआई क्या बोलती है कि आपके पास जो सरप्लस मनी है वो आप मेरे पास रखिए, आरबीआई के पास रखिए, उस पर फिर सर्टेन अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। उस पर सर्टेन अमाउंट आरबीआई देती है, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जनरली रेपो रेट से थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है, जैसे अगर मान लीजिए 4% रेपो रेट का है, तो 3.5% कुछ होगा आपका रिवर्स रेपो रेट का। जनरली रिवर्स रेपो रेट कम होता है, तो रीजन बीइंग कि आपका देखिए, जब शॉर्टेज रहता है कॉमर्शियल बैंक के पास, तो उनकी जरूरत Yes. है ना, जरूरत है तो वो पैसा रख रहा है। लेकिन यहाँ आरबीआई के पास आप ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, आरबीआई को कोई जरूरत नहीं है,
कैश Yes. तो फिर भी उसको सर्टेन इंटरेस्ट दे दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, उसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। यहाँ तक क्लियर है? यस Yes. ठीक है, तो ये सारा क्वांटिटेटिव अप्रोच है। अब कैसे फंक्शन करती है, मैं व्हाइट बोर्ड एक सेकंड यूज करूं। अब देखिए इसका ऑपरेशन कैसे होता है। देखिए आरबीआई है यहाँ, ठीक है, ये सारा जो भी हम क्वांटिटेटिव अप्रोच देखे वो सब आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक इसके बीच में हो रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. तो हम लोग देखें तो अब देखिए कॉमर्शियल बैंक का कुछ एग्जांपल जैसे ले लीजिए, एसबीआई है, सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है एक एसबीआई के थ्रू, एसबीआई इज देयर, any more commercial bank name, PNB is there, यस मैम PNB, BOB, UCO Bank, any 3 to 4 name you can take just for understanding. So these are commercial bank. Do you know Yes, the ma'am. difference between commercial bank and central bank? यस मैम जिसमें गवर्नमेंट का अगर 51% शेयर चला गया तो वो हो गया सेंट्रल बैंक, यही ना मैम? Come on, RBI is public financial institution. It is public financial institution. Government. नो मैम आप कॉमर्शियल ऐसे पूछे तो मैंने ना कॉमर्शियल Commercial बैंक bank is, you were telling about central bank. Commercial bank is for profit. Okay, and both private and public, both can be commercial bank. ठीक है, and commercial bank तो मैम compete. ये कौन सा होता है जिसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर रहा तो फिर वो चला जाता है सरकारी बैंक में, और जिसमें सरकारी बैंक में मैं क्या बोल रही हूँ, कॉमर्शियल बैंक किसको कहते हैं, आपने क्या बताया? ओ मैम तो मैंने वो 51%. डिफिनेशन, हाँ? यस मैम मैम उसका डिफिनेशन उसमें डाल दिया। हाँ, तो ये जो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, आपस में compete भी करती है, आपस यस मैम आरबीआई के साथ compete नहीं करती, और आरबीआई प्रॉफिट के लिए नहीं होता यहाँ, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए होती है। नाउ सी, अब देखिए रेपो रेट, जैसे मान लीजिए रेपो रेट ये से चार्ज करेगा, आरबीआई से लोन मांग रहा है ये कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। यस मैम अब रेपो रेट फॉर एग्जांपल से 5% है, ठीक है, रेपो रेट फॉर एग्जांपल, एक मिनट इंटू हो गया, रेपो रेट इज 5%, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब पीएनबी को अगर हमको देना होगा पब्लिक को, कॉमर्शियल बैंक को, तो 5% पे तो देगी नहीं, जब भी देगी 5% से अधिक देगी। फॉर से अगर 5% अगर इसको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, तो पब्लिक को कम से कम 7% या कुछ पे देगी। यस मैम मान लेते हैं पब्लिक को सस्ता लगेगा ये, ठीक है, राइट ऑन पब्लिक, पी फॉर पब्लिक, ओके। अब पब्लिक को सस्ता लग रहा है, इजिली उसको लोन अवेलेबल हो पा रहा है, नतीजा कैश उसके हाथ में आ गया, इजिली वो कुछ भी जाके डिमांड कर सकता है। आपके हाथ में अगर पैसा रहता है तो ऑब्वियसली आप जा करके कुछ भी डिमांड करते हैं, कभी चाट खाएंगे, कभी चाउमीन खाएंगे, सब मतलब चाट वाला भी बोलेगा ये हमेशा आता लगता है 10 रुपये सस्ता है, इसको 15 रुपये में दो। आप भी बोलेंगे हाँ बहुत टेस्टी लगता है, मेरे पास पैसा है, 15 रुपये दे देंगे, और धीरे धीरे उसका प्राइस क्या होगा, वो 15 रुपया फिक्स हो जाएगा। जब सबके पास लोन मिलेगा, मतलब सबके पास में कैश अगर रहेगा, तो आप भी 15 रुपए में लेने के लिए राजी हो गए। अब हामिद के पास भी पैसा है, हामिद भी जाकर के 15 रुपए में लेने के लिए राजी हो गया, नतीजा 10 रुपए का सामान 15 रुपया हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अब कैश को मेरे को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो कैश को कंट्रोल करने के लिए अब आरबीआई करेगी क्या करेगी, अब रेपो रेट अगर मेरे को चार्ज करना होगा तो हम 5% के बदले बढ़ा करके 10% कर देंगे। नाउ दिस वन इज 10%। तो ऑब्वियसली 10% अगर कॉमर्शियल बैंक को देना पड़ रहा है तो आपसे तो फिर अगेन बढ़ जाएगा ना यहाँ भी। Yes, ma'am. तो अब आपसे 17% चार्ज करना शुरू कर दी। Yes. जैसे मान लीजिए सर्टेन अमाउंट आप लेने के लिए जा रहे हैं, अगर 1 लाख आप लेने के लिए जा रहे हैं, उसके बदले आपको 1.5 लाख अगर पे करना पड़े तो क्या आप लोन लेंगे? भाई अभी लोन नहीं लेना, 1 लाख की जगह 1.5 लाख मांग रहा है, या फिर
उससे ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली लोन तो कोई डिमांड करेगा नहीं। No, अब ma'am. मान लीजिए चाउमीन वाला वहां बैठा हुआ है, आपको देखा तो ऑब्वियसली आप डिमांड करेंगे नहीं, नहीं भाई चाउमीन नहीं चाहिए, पैसा नहीं है, हमें पैसा नहीं है। अब कोई इसी तरीके से कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है चाउमीन वाले के पास, तब क्या करेगा? 15 रुपए से हो गया, लगता है महंगा कर दिए इसीलिए नहीं आ रहा है, 10 रुपया हो गया। बात Yes, समझ ma'am. पा रहे हैं? Yes, ma'am. तो इसी तरीके से पैसा रहता है तो लोग डिमांड करते हैं, और इसी तरीके से कंट्रोल करके, ये सिर्फ आपका रेपो रेट ही नहीं, रेपो रेट के अलावा सीआरआर, मॉनेटरी रेट में कौन कौन सा हो गया आपका? सीआरआर, ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका एसएलआर, SLR, LF. ये सब तो रिजर्व अपने पास रखी या आरबीआई के पास रखी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास हो गया रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है। अपने नोटबुक में आप तो फुल फॉर्म में लिखिएगा, रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है। इसमें से कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, बीआर इज फॉर बैंक रेट, ठीक है। Yes. इसमें से कुछ भी अगर इंक्रीज हो रहा है, देखिए, चाहे रेपो रेट इंक्रीज हो, चाहे बैंक रेट इंक्रीज हो, तो लोन लेना टफ होगा, लोन भी तो हम ज्यादा इंटरेस्ट पे Yes, ma'am. देंगे। और अगर सीआरआर की बात करें और एसएलआर की बात करें, अगर आपको बैंक बोल दे रिजर्व रखने के लिए, जैसे 100 रुपया अगर है, 100 रुपये में 97 रुपीज आपको रिजर्व रखना है, ठीक है, सिक्योरिटी देना है, तो आप कितना 97 रुपीज रिजर्व नहीं रखना है, तो मान लीजिए 4 रुपया हमको रिजर्व रखना है, ठीक है। तो बिजनेस में तो मेरे लिए कम घट गया ना वो। Yes, ma'am. सेम वे अगर एसएलआर बढ़ा दिया जाएगा, जैसे 18% मैं बोल रही थी, अब 18% की जगह पे अगर 30% रखने बोल दिया गया, 30% सिक्योरिटी अगर रखने के लिए बोल दिया गया, तो अगेन क्या हुआ? बिजनेस के लिए कम हाँ। पैसा हम दे पाएंगे ना, लोग Yes, कम ma'am. पैसा दे पाएंगे ना। Yes, ma'am. अगर हम 100 रुपया दे पा रहे थे, अब 30% रखना ही है मेरे को, तो 100 माइनस 30, 70 रुपीज ही हम दे 70. पाएंगे, है ना। Yes, ma'am. और पहले कितना दे पा रहे थे? अगर 18% हम बोल रहे हैं, तो अगर 18% की अगर मैं बात करूं, तो 82 रुपीज हम बिजनेस में लगा पा रहे थे। Yes. और ये तो सिर्फ एसएलआर, अब सीआरआर भी आपको उसमें काटना है। 82 माइनस मान लीजिए 4% अगर सीआरआर है, ठीक है, तो 78 रुपीज ही आपके पास बच रहा है ना बिजनेस में Yes, लगाने ma'am. के लिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, अलग अलग नहीं पढ़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ भी इंक्रीज हो रहा है तो आपको लोन लेने का कैपेसिटी भी डिक्रीज हो रहा है। Yes, ma'am. तो आप क्या क्या कंट्रोल कर पाए? अब मान लीजिए आप लोन कम ले पा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे होगा? सबसे पहला आई, अगर ये सारा रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, मॉनेटरी रेट, स्वाति समझ पा रहे हैं आप? यस मैम। अगर ये सारा रेट इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक का इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करेगी हम लोगों से, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Increase होगा ना? मैम सब इंक्रीज होगा मैम। इंक्रीज होगा, तो अब इंटरेस्ट भी हम लोग का बढ़ गया, तो हम Yes, ma'am. लोन लेने का जो डिमांड है, नेक्स्ट एल इज लोन, आपको लिखना भी है नोटबुक में, ये जो Yes, लोन ma'am. है वो क्या होगा? वो लोन तो का कम डिमांड हो- करेंगे। तो मैम अगर रेट सब इंक्रीज करेगा तो लोन का डिमांड तो मैम कम हो जाएगा ना। वेरी गुड, लोन कम हुआ। अब Yes, लोन ma'am. कम ले रहे हैं तो कैश जो है, यस मैम। कैश जो है वो क्या होगा? पब्लिक के पास कैश क्या हुआ? कम या कम ज्यादा? हो गया. कैश भी कम हो गया, Yes. मैम यस ठीक मैम। है। कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल कर रही है आरबीआई, ये देख रहे हैं। Yes, ma'am. यस मैम। अब कैश कम हुआ तो हमारे पास जो डिमांड, जो सामान का हम कर रहे थे वो क्या हुआ? कम होगा. Again demand will also decrease, and after Yes, that ma'am. if demand will decrease, then automatically price will Decrease. also decrease, and when price will decrease, automatically the ultimate aim of RBI, inflation, will also मैम ये तो बहुत बड़ा चेन है decrease. मैम। डिक्रीज मैम, ये तो बहुत बड़ा चेन हो जाएगा मैम जो कंट्रोल हाँ, तो करती है इसी RBI। तरीके से आपको जो पूरा आप थ्योरी में जो लिखते हैं ना, इस ये सिर्फ जान लेंगे तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन कर पाएंगे। सीआरआर, Yes, एसएलआर सब कुछ हम अलग अलग पढ़ते हैं ना, यस ये मैम। बढ़ेगा Yes, तो ma'am. घटेगा, अभी तो मैं अलग अलग नहीं बताऊंगी। जनरली जो पढ़ाया जाता है ये अलग अलग पढ़ाया जाता है। सीआरआर बढ़ेगा तो ऐसे आरबीआई घटाएगी, तो अलग अलग पढ़ने पे और कंफ्यूजन होता है।
तो आप Yes. पहले कॉन्सेप्ट सबका समझ जाइए कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या रहता है, बैंक रेट क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब फिर Yes. लास्ट में पढ़िए इकट्ठा कि एक ही बार हम लोग जान गए कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा कैसे होगा। ठीक है, तो अलग अलग आपको दिमाग नहीं लगेगा, सीआरआर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट हमारा कम होगा या कैश हमारा कम होगा, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हमें तो सिंपल ही है, अगर यहाँ बढ़ा इंटरेस्ट तो सब चीज हम लोग का कम होते रहेगा। हाँ, तो ये भी ध्यान दीजिए क्या बढ़ा है, रिवर्स रेपो रेट अगर पूछ देगा तो रिवर्स रेपो रेट का असर नहीं है, यहाँ रेपो रेट है। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, ये क्या बढ़ने से, ये सारा बढ़ने से ये सारा अफेक्ट होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी यही है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई क्या की, इंटरेस्ट कंट्रोल की, लोन देने का क्षमता कंट्रोल की, कैश कंट्रोल की, मार्केट में डिमांड कंट्रोल की, प्राइस कंट्रोल की। अब Yes, और ma'am. लास्ट में जो हमारा इन्फ्लेशन है ये भी कंट्रोल कर, जो अल्टीमेट गोल है आरबीआई का। अब जैसे मान लीजिए ये कोरोना का टाइम चल रहा है, अब कोरोना में मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट ने क्या कहा, थोड़ा लिबरलाइज करने को, यू नीड टू लिबरलाइज ऑल दीज मॉनेटरी रेट। ओके, देन Yes. what RBI did that they decreased all these rate, सीआरआर डिक्रीज कर दिया, एसएलआर डिक्रीज कर दिया, सब डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आया और हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो पाई। Yes. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो अभी क्या है, फिर कुछ महीने के बाद कुछ और होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और Yes, इसके ma'am. अलावा एक और रेट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग रेट। ठीक है, मतलब बैंक को ओवरनाइट के लिए भी कई बार पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, ओवरनाइट के लिए। ये तो मैंने रेपो रेट जो शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया था, रेपो रेट जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म बताया था, वो कितने टाइम पीरियड के लिए था? 2-4 days. रेपो रेट 2 to Short term 14 के days। 14 days मैम। 2 to 14 डेज, लेकिन ma'am. ओवरनाइट के लिए होता है। ठीक है, एक ओवरनाइट के लिए होता है, उसको हम एमएसएफ कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है, ओवरनाइट के लिए होता Overnight. है, शॉर्टेस्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट रेपो रेट, शॉर्टेस्ट का ओवरनाइट का तो Marginal standing. मार्जिन। फैसिलिटी। यस मैम। ठीक है, और बीआर तो लॉन्ग टर्म मैंने बता ही दिया, सीआरआर एसएलआर जान ही गए, ओएमओ आप जान ही गए। तो ये था क्वांटिटेटिव अप्रोच। आपने क्या पढ़ा, Quantitative. quantitative approach. And obviously I am not going to overburden you. You first clear your concept in quantitative approach, then in next class we will be discussing on qualitative approach. Qualitative. All right, Yes, Yes, ma'am. till then if you have any question you can ask.